Hello students, welcome to my class on class 9 mathematics. Students, today I have selected a question from chapter polynomials, exercise 2.4, question number 6. And the reason behind selecting this question is that students, the question has a printing mistake. According to the textual book, the question is, if x plus a is a common factor of the polynomials x square plus px plus q and x square plus mx plus n, then show that a equals to n minus q divided by p minus m. But students, this is not correct, this is incorrect. According to questions, our question should have been either this, that a equals to q minus n divided by p minus m, or students a equals to n minus q divided by m minus p. तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन इज़ नॉट करेक्ट. हम इसको शो नहीं कर सकेंगे स्टूडेंट्स. अगर हम शो करते भी तो ये हमारा नहीं आएगा, बल्कि आइदर ऑफ दिस आएगा स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये आता है तब भी करेक्ट है, और अगर स्टूडेंट्स आपका ये आता है तब भी करेक्ट है स्टूडेंट्स. और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये दो अलग अलग आंसर्स भी क्यों आते हैं. वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि x प्लस ए इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल्स दिस एंड दिस. तो हमें पता है स्टूडेंट्स बाय फैक्टर थ्योरम कि अगर x प्लस ए इज़ ए कॉमन, इफ x प्लस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ एनी पोलिनोमियल, देन x इक्वल्स टू माइनस ए वुड बी द ज़ीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल. तो स्टूडेंट्स ये हमें पता है बाय द फैक्टर थ्योरम. तो चलिए स्टूडेंट्स हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे. बट बिफोर दैट हम लोग दो पोलिनोमियल को लेट कंसीडर करते हैं कि लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू. हम इसको p ऑफ x कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स. p स्टैंड्स फॉर द पोलिनोमियल इन वेरिएबल x. since students x plus a is a factor of p of x, क्योंकि x plus a p of x का फैक्टर है स्टूडेंट्स, then we can say that so by factor theorem x equals to minus a is the zero of p of x. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि x प्लस ए हमें दिया गया है कि x प्लस ए फैक्टर है p ऑफ x का, तो बाय फैक्टर थ्योरम स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस ए इस p ऑफ x का ज़ीरो होगा. मतलब अगर x की जगह पे हम माइनस ए पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मेरा जो एक्सप्रेशन है इट विल एंड अप टू ज़ीरो. इसका वैल्यू टोटली ज़ीरो आएगा. देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि p ऑफ माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो हमारे p ऑफ x के जगह पर हम माइनस ए पुट करते हैं तो ये हमारा टोटल एक्सप्रेशन ज़ीरो आएगा. चलिए इसको पुट करते हैं. एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस ऑफ ए प्लस q इक्वल्स टू ज़ीरो. implies minus a, since the power is even, therefore the negative sign will become positive. A square plus minus minus ap plus q equals to 0 implies a square is equals to minus ap goes this side becomes plus ap, and plus q goes this side becomes minus q. Mark this is question 1. एंड सेम टू सेम स्टूडेंट्स इसको रिपीट करते हैं. लेट p डैश ऑफ x, क्योंकि हमारे पास और एक पोलिनोमियल है तो इस पोलिनोमियल्स को हम p डैश ऑफ x कंसिडर करते हैं. लेट p डैश ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n, एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस m. एंड स्टूडेंट्स सेम कॉन्सेप्ट यही है कि सिंस x plus a is the factor of
p dash of x, therefore x equals to minus a is the 0 of p dash of x, and p dash of minus a would be equals to 0, implies p dash क्या हमारा minus a whole square, ये x square है तो minus a whole square plus m into x, that means m into minus of a plus n equals to 0, implies power is even, so it becomes positive, minus am plus minus minus am plus n equals to 0. Here also students, if you take on the other side, it becomes plus m minus n, mark it as 2. So we have got two equations, student. One is equation 1, is a square equals to ap minus q, and in the next case equation 2, there is a square equals to am minus n. If you observe, students, both the left hand sides are a square, that means both of them are same. Both of them are same because the factor was same, that is a is same for both, that's why the a square would be also same for both. So we can say that if left hand side a square is equals to this, here also left hand side a square equals to this, then we can say left hand side, if they are equal, then definitely the right hand side will also be equal. So now from equation 1 and 2, we can say that ap minus q equals to am minus n. Here you see, students, being the a term in one side and take the minus to the other side, becomes plus q minus n. Here you take a common, students, then remains p minus m equals to q minus n, and after that, students, a equals to q minus n, this p minus m goes for the side, distance becomes divide, so a equals to q minus n divided by p minus n. So here you observe, student, we have got the first one, that is a equals to q minus n divided by p minus m, which we have written already, students, here you see a equals to q minus m divided by p minus m. At the same time, students, we can prove this also. Now how come this, students, to bring this there is a slight changes, थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे, कुछ सिंपल चेंजेस है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इक्वेशन 1 को इक्वेट किया था इक्वेशन 2 के साथ, दैट इज दिस इक्वल्स टू दिस। इसी जगह पर स्टूडेंट्स मैं यही पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो अगर ये इक्वल्स टू ये है देन डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये भी इक्वल्स टू ये होगा, तो आइदर ऑफ दिस कोई भी किसी के साथ इक्वल हो सकता है। तो अगर मैं ये राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, दैट इज ए एम माइनस एन इज इक्वल्स टू ए पी माइनस क्यू, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप वही अप्लाई कीजिए, ए पी को सेम टर्म को एक साइड लाइए, एन माइनस क्यू हो जाता है, ये प्लस एन गोस अदर साइड बिकम्स माइनस एन गोस अदर साइड बिकम्स प्लस एन, जैसे ए कॉमन लीजिए, एम माइनस पी इक्वल्स टू एन माइनस क्यू, यहाँ पे आप ए लिखिए, एन माइनस पी इक्वल्स टू डिवाइड बाई एम माइनस पी। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको यहाँ पे मिल जाता है ए इक्वल्स टू एन माइनस क्यू डिवाइड बाई एम माइनस पी। तो बेसिकली कहाँ पे तो आपका एक्सचेंजेस था स्टूडेंट्स, यहीं पे, बस कौन सा आप लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, कौन सा राइट हैंड साइड में लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट स्टूडेंट्स आपको दो अलग अलग सा एक्सप्रेशन मिलता है। बट हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक टोटली अलग सा ही एक्सप्रेशन दिया है जो कि सही नहीं है। तो जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो कभी आपको ये मिल सकता है या फिर कभी आपको ये मिल सकता है, तो आइदर ऑफ दिस बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो एंड आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया हो। दिस क्वेश्चन इज एडेड न्यूली इन दिस ईयर एंड दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, बट कन्फ्यूजिंग है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। So I hope I have cleared your questions, I have cleared your confusions, and if you felt good enough to understand this, then I want you to like this video and do subscribe and surely you comment in the comment section. Bye students.